He's relying on articles and newspaper cuttings may not be admissible. इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है। ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द अदर जजमेंट इज इंदिरा गांधी। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो सर मुझको 10 मिनट का टाइम दे दे, मैं लाके दे देता हूं। ऐसा थोड़ा अभी ये है कि सर कि जो वहां पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी बातें सर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे बोला जाता है और जो सबसे ज्यादा यस मैडम आपको क्या कहना है बताइए। Fact, Your Lordship, at the outset, it is a public interest litigation. They have to, the honorable courts have to ensure that the public interest litigations are in the interest of the public, and they are not motivated or oblique petitions or petitions which have been filed only to with a political motive. Your Lordship, for that I am relying on the judgment rendered in the case of State of Uttaranchal versus Balwant Singh Chaufal. Now there are two grounds that Your Lordship in the instant petition that he has raised. One is that the proper permission has not been obtained. Now he has not pointed on from the records or from any law or any provision that the permissions have not been given by the what provision of law requires the Gram Sabha or any other body to grant permission for conducting of such events. Whatever the administrative permissions are required from the office of the collector, all these have already been granted by the concerned authorities or by the police authorities. Secondly, he is challenging the order dated 2/5/23. Your Lordship is aware that these are very massive gatherings at such events take place. These and to ensure the law and order situation. Now, these orders are passed and the persons are the officers are posted there only to take care of the law and order situation. There is nothing, there is no interest involved or private interest involved of the administration. It is only to foresee that the entire event takes place without any untoward incident. And that is the only purpose of issuing such orders. In fact, this order has also been modified. So the purpose of the challenge to the petition that has also, the challenge to this order that has also been rendered infructuous. He's relying on articles and newspaper cuttings may not be admissible. Justice Lahoti, my lord, specifically stated in para 35, page number, my lord, 1309, my lord. Yes. Because my learned friend argued that, my lord, कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का वो नहीं है। अब ना इसमें लिखा हुआ है सर, जिले में परसवाड़ा के 23 मार्च को आ रहे चर्चित पहले स्टार्टिंग है सर 46 युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम इन दिनों जिले में खास चर्चा में है, परंतु अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट में उनकी अलग तरह की चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है और ये सभी वाकिफ हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन के लिए बुलाना कोई आम लोगों के बस की बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के बोलों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अपने दो दमदार और असरदार बताने की होड़ लगी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने में सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की ताकतवर होने का एहसास कहने का प्रयास करते हैं। प्रदेश से हटकर बालाघाट जिले की सांस्कृतिक तो मुद्दे की बात पर आइए। इस आर्टिकल में वो 4 लाइनें पढ़ के बताइए जहां उन्होंने कहा है कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होंगे। ये सब नेतागिरी का मत पढ़िए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्संस। इनका बेसिक आर्गुमेंट रहा है कि इट इज नॉट द आपकी पिटीशन ये है जी कि किसी व्यक्ति विशेष के आने से वहां पर ट्राइबल्स के राइट एडवर्सली अफेक्ट होंगे और ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आ सकता। दिस इज योर फाउंडेशन ऑफ योर केस। Please show us. My lord, article. Our view is that we will not rely on any of. My lord, may I permit to read this, my lord? What is that? My lord, this is the, my lord. Are we supposed to understand law on the basis? No. No. Are we supposed to understand law on the basis of some commentary, or we are supposed to understand law on the basis of the provisions contained in? My lord, the motto. You have already given. My lord, the motto of this act, my lord, that has been written by the person who is the chairperson of the committee, my lord.
Only the motto, what the purpose. Aims and objects are written by the legislature, which decides to frame a law, which wants to bring a law, because it is the prerogative of the legislature to enact a law. My lord, So what are the aims? my lord, the judgment of Indira Gandhi, my lord, as well as the Pandit Jawaharlal Nehru, my lord, that I. Gandhi versus Pandit Jawaharlal नहीं Nehru. नहीं, दो जजमेंट है सर. द जजमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द अदर जजमेंट इज इंदिरा गांधी. बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो सर मुझको 10 मिनट का टाइम दे दे, मैं लाके दे देता हूँ. ऐसा थोड़ा ना वकील साहब, ये सब आपकी बहस, आपका पक्षकार सर देख रहा है, टा- आपका पक्षकार देख रहा है आपकी बहस. सर टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था सर, क्योंकि कल पिटीशन लगाई है और कल में सब कुछ करना जल्दी था. क्या थी उसको कली का? जल्दी इसीलिए सर क्योंकि 23 और 24 को फंक्शन है. 23 और 24 परसों अभी तो सोमवार को 22 तारीख भी है, 22 को भी सुनवा सकते थे आप. सर एक दिन में पूरी मशीनरी पूरी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि वो पूरा फंक्शन जो है बाहर से लोग आते हैं, सारे क्राउड इकट्ठे हो जाएंगे. 144 धारा जो लगाई है उसका कोई यूज नहीं होगा. 44 धारा हटवाना चाहते हैं. सर मेरा 144 हटाने का उद्देश्य नहीं है. मेरा उद्देश्य ये है कि सर कि जो वहां पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी बातें सर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे बोला जाता है, और जो सबसे ज्यादा आहत होगा ये वर्ग, और इस वर्ग के लिए आहत होगा. लिख लेते हैं ये भी आर्ग्यूमेंट, लिखिएगा. श्री प्रहलाद चौधरी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर. श्रीमती जानवी पंडित, लर्नेड एडिशनल. मैंने सर एक सीडी इसमें पेन ड्राइव लगाई है, और इस पेन ड्राइव में वो सारी बातें हैं जो वहां पे घटित हो रही घटना, उस घटना से विरोध कितना हो रहा है इस फंक्शंस के लिए, वो मैंने एक वीडियो से दी. और मंत्री जी का इसमें भाषण 65B का सर्टिफिकेट लगा है. हाँ, 65B का ये लगा सर्टिफिकेट. है. पेज नंबर पेज नंबर 47. क्या है ये? शुभम उइके जिन्होंने सर्टिफिकेट जी पढ़िएगा जरा. मैं प्रमाण पत्र जारी करता शुभम उइके पिता श्री सुवेंसु निवासी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा पब्लिक मंच जिसमें रामकिशोर कावरे मंत्री जी द्वारा बनवासी रामकथा के प्रवचन बागेश्वर धाम द्वारा कराए जाने की अनुमति के संबंध में दी गई भाषण तथा आदिवासी द्वारा विरोध प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग एवं पेपर कटिंग की फोटो अपने मोबाइल 1 प्लस जिसका मोबाइल नंबर वहां पे सर जो विरोध हो रहा है उस पूरा विरोध का दिया है. अब सर इतना ज्यादा विरोध के बाद भी वो फंक्शन वहां पे होगा, तो एक तो सर क्लैश कर रहा है. 144 धारा भी उन्होंने लगा के जहाँ पे 4-5 से लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, वहीं पे पूरा क्राउड को इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सर वो ऑर्डर कर रहे हैं पूरे उस फंक्शन को कराने के लिए. तो मेरा निवेदन सर ये है कि भाजपा के प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट मशीनरी नहीं लगेगी सर, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी को लेने के लिए भी ग्राम सभा. एलिगेशन कहाँ लगाया कि ये पार्टी का प्रोग्राम है? बताइए ना. पढ़िए तो आपका जी, आर्ग्यूमेंट बदल रहा है धीरे धीरे. जी आपके सुर और आर्ग्यूमेंट दोनों बदल रहे हैं. नहीं सर लिखा है. Court is of the opinion that if we show any indulgence in the matter, then that will be disturbing the social fabric and disturbing the laudable object of the Indian Constitution to achieve egalitarian social order. Therefore, we refuse to show any indulgence in the matter, especially when petitioner has failed to show any violation of the statutory provisions contained in the PESA Act or Schedule 5 of the Constitution, or as to the provisions contained in Article 19 of the Constitution. Thus, petition fails and is dismissed. Objection.